मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा आयत 213 कानन नासो उम्मतन वाहिदतन है इंसान एक वाहिद उम्मत। सो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एज अ सिंगल नेशन एड्रेस किया है यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू टेक देम एज वेल, वी आर ऑल वन नेशन। फ़बाअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, और फिर अपॉइंट किए हैं अल्लाह ने नबियों में से दोज़ हु ब्रिंग गुड न्यूज़ एंड दोज़ हु वार्न, बताने वाले लोग। व अनज़ला मआहुमुल किताबा बिल हक़्क़ि, और हमने नाजिल किया उनके साथ किताब को हक़ के साथ। लियहकुम बैनन नास, ताकि वो गवर्न कर सकें इंसानों के दरमियान। फ़ी मख्तलफ़ू फ़ीह, उस चीज़ में जिसमें वो इख्तिलाफ़ में हैं। व मख्तलफ़ा फ़ीह, और जो भी इख्तिलाफ़ में हैं। इल्लल्लज़ीना ऊतूहु, वो नहीं होते इख्तिलाफ़ में सिवाय उन लोगों के जिनको अता की गई है। मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनातु, इसके बाद के आ गई हैं उनके पास क्लियर साइंस, क्लैरिफिकेशंस। And then what happens? Baghyam bainahum. They just want to prove each other wrong. So पहले अल्लाह ताला जब सबको मैसेज भेजते हैं, किताब के साथ हक भेजते हैं, इंसानों को जब नॉलेज आ जाती है, तो उसके बाद वो आपस में based on the differences created upon the understanding that they have received, they start to fight amongst each other, in the sense they start to oppose each other and they start to just put, Baghyam is, against, through selfish, for selfish reasons, they just want कि हमारी बात जो है, which we are seeing in our, deen also, the same thing is happening, कि अगर आप जो follow कर रहे हैं, if somebody is not following the same way or not understanding the same way, instead of just realizing that it's okay, probably it's not their time or they are not able to comprehend, we just take a personal sort of, disliking towards that person, which is not required really. और आपको हर फोरम पे जाकर उनको अपोज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो आपकी बात नहीं समझ रहे, और they're not getting the message or they're not following it, it's okay, leave it to that, because it's not for us to make sure that they understand it. First of all, we started our lessons with this understanding that Allah is the one, Ar-Rahman, Allama al-Quran, who gives the knowledge of Quran. So we have to keep that in mind. Quran, we are not the ones teaching the message. So if we are given the responsibility, because we are accountable to justify the knowledge that has been gifted to us by Allah, it does not mean that we make sure that the other person is understanding and following. That responsibility has not been placed on us. So आपके ऊपर है सिर्फ पहुंचा देना मैसेज का, और उसके बाद वो समझते हैं नहीं, to the best of your ability. You sort of transfer the knowledge or impart the knowledge to the best of your capacity and ability. And after that, if they understand, they reject, they don't follow, whatever, you just move away from that, and you don't hold any grudge against anyone in that aspect. Okay, and later on, especially in these times, if somebody who did not agree with us earlier on, and if is in difficult situation these days, we should not feel, okay, told you so and you are not following, so आप देख नहीं रहे हैं religion को, उसी तरह follow नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है. Not our place to say that. That is not for us to say. So because this is what happens, ये अल्लाह ने आयत बताई है, तो this is very natural process, this will happen. But again, हमने गार्ड लेना है इसके अगेंस्ट, कि हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड पे रखें, क्योंकि मैसेज भी अल्लाह का है और हम भी अल्लाह के सर्वेंट्स हैं. तो अगर हम किसी को अल्लाह का मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो वो हम किसी ना किसी पे फेवर कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और अपनी ड्यूटी हमने यहाँ तक निभानी है कि मैसेज पहुंचा दिया जितना हम पहुंचा सकते थे, और उसके बाद छोड़ दिया, एंड वी लेट इट बी. एंड वेयर we don't agree with where the other person does not agree, we learned in Surah Kafirun
Lakum dinukum waliya deen. To you is your judgment and to me is mine. Having said that, something that becomes an argument between us and another person, we don't continue to impress upon the other person in that regards. वो बात ख़त्म हो गई है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को completely छोड़ दीजिए, कि उनके साथ कोई relationship भी नहीं रखेंगे. So आपको जितना जितना relationship जहाँ आप दीन के मुताबिक रख सकते हैं, you enjoy certain time with them in company of friends or their relatives or within family members also, आप उस जगह से अप्रोच कीजिए जहाँ पे आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. कंप्लीट डिस्कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ यू, कि आप उनको बिल्कुल ही लेबल, बिकॉज देन यू आर लेबलिंग देम एज काफिर और मुशरिक और वट एवर थिंग्स कम टू योर माइंड, एंड यू आर जस्ट ignoring the faith that they have, because they're not complete negative people. They, everyone has goodness about themselves. So उनके जो अच्छी आदतें, उनका अच्छा behavior और इखलाक है, or whatever common interests you have, please continue to enjoy that. Just don't bring up that side of theirs where you don't agree. So इसमें भी आपका restraint or wisdom is to be utilized. फ़हदल्लाहु लज़ीना आमनु, फिर अल्लाह गाइड करते हैं उन लोगों को जो ईमान लाते हैं, लिमख्तलफ़ू फ़ीह, उसके बारे में जिसमें वो इख्तिलाफ में है, मिनल हक़ बिइज़्निही, विद ट्रूथ, फ्रॉम द ट्रूथ, उसकी इजाज़त से. वल्लाहु यहदी मन यशाउ, और अल्लाह गाइड करते हैं जिसे वो चाहते हैं, इला सिरातिम मुस्तकीम, टूवर्ड्स द एस्टैब्लिश्ड वे. So Allah guides whom He wills. So it's not our responsibility to guide anyone. ठीक है जी. और जहाँ आप इख्तिलाफ में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको कोई पीसफुल पाथ ढूंढना होता है जहाँ पे you can stay in, राब्ते में आप रह सकते हैं उनके साथ. Because इस तरह तो आप अपने आप को बिल्कुल isolate कर देंगे, and you will not be, you can't agree with, everybody will, not everybody will agree with you, and everybody will have certainly some differences with you. But then the beauty of having enough faith is, and firmness of faith is, that you let go, you forgive that side, and you let go from wherever you have felt any sort of hurt or any feeling of किसी की तरफ से अगर आपको कोई negative feeling आई है, उनको माफ़ कर दीजिए, overlook कीजिए, move on and connect with them on grounds which are enjoyable and for well-being of our emotional selves also, and आप एक दूसरे के साथ फिर connection में रहते हैं. एंड शायद आपको नहीं पता होता किस वक्त वो इंसान आप कोई इंस्पायर हो के आप बात मान ले, आपका जो भी मैसेज आपने पहुंचाया वो अल्लाह की बात मान रहे हैं, अल्लाह का मैसेज मान रहे हैं आपके लिए. अगेन डोंट बी पर्सनल अबाउट इट. सो नेक्स्ट आयत 2:14, अम हसिब तुम, क्या तुम हिसाब लगाते हो, अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना, और इस तरह जो कि आया है मिसाल उन लोगों के जो कि गुज़र गए हैं, खलौ मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले. You will not face what others have faced before you. मस्सतहुमुल बअसाउ, they were touched by difficulty, वद्दर्राउ, and with distress, वज़ुलज़िलु, and with shaking. Zalzala meaning they were really shaken out of their in their spirits. हत्ता यकूल रसूलु, यहाँ तक कि जब कहा रसूल ने, वल्लज़ीना आमनु, और ईमान वालों ने, माआहू, जो उनके साथ थे, मता नस्रुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की हेल्प. अल्लाह की help is near. So Allah's help is always near. लेकिन haven't we all been through this before as well? इस किस्म की पैनिक वाली feelings, distress वाली feelings, and difficulty वाली feelings, we've all been through it. If somebody these days is going through that,
So again, we have to empathize regardless of whatever their beliefs are or whatever they have been following, not to be judging them on that. We have to, again, it's our duty to overlook, forgive, and then guide them if they need somebody to help them or be with them or empathize with them, be compassionate. 2 की 215, अब इसी मामले में देखिए, यस अलूना का माजा युनफिकून, वो सवाल करते हैं आपसे कि हम क्या खर्च करें. So what is it that we should spend? So we are talking about spending out of our compassion and kindness and whatever we have learned. उसकी आपकी learning क्या है? आपकी knowledge खाली कुरान की जो है वो खाली knowledge है which is in the mind, or have you actually inculcated it in your behavior as well? And that is what should be reflected out to other people. कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, कहें कि जो तुम खर्च करो खैर में से, फलिल वालिदैन, अपने वालिदैन के लिए, वल अक़रबैन, and all those who are near to you, physically near to you or spiritually near to you, or even those who are your dear ones, any friends, family. वल यतामा, और यतीम लोग. यतीम लोग वो होंगे जिनके पास कोई नहीं है उनको बताने वाला, उनकी सरपरस्ती करने वाला, एंड उनको कोई इस तरह की गाइडेंस अल्लाह की तरफ से देने वाला, उनके साथ एम्पथाइज करने वाला. वल मसाकीन, एंड दोज हु आर नीडी. सो यू कैन always find people around you who are needy of some sort of consolation, some sort of help, some sort of sabr and tasalli. Wabn sabil, and son of the way, those striving in Allah's way and still struggling. Wamat, and who they're still striving, so they haven't reached a place of peace and stability yet. In the areas where you have reached peace and stability, आपके ऊपर अब ड्यूटी बनती है कि आप उनको हेल्प आउट कीजिए. वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी तुम ये काम करोगे खैर में से, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह को उसका इल्म है. सो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए 213 से 215 तक, सो इट्स एक्चुअली अबाउट spending in Allah's way on those people who are suffering. So it's financial also, but आप spiritual sense में इसको लीजिए कि जो अभी इस वक्त जिनके हालात ऐसे हैं कि उनको बहुत परेशानी, worries and fears हैं अपने बारे में, so you spend out of your pool of आपके अंदर जो आपकी कंपनी भी उनके साथ जो है will give them some sense of peace and some sense of relief from their personal struggles. So counsel them and spend time with them if you feel that would help. So don't detach and stay away from them कि हाँ बस this is what they're facing, all that they're suffering because of what their own deeds. No, that should not be our stance. 3 की 134 देखिए, ये गुस्से के मामले में हमने देखी है, and it's important to repeat it again from this perspective. Surah 3 ayat 134. अल्लाज़ीना युनफ़िकूना, वो लोग जो खर्च करते हैं, फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, आसानी में भी और मुश्किल में भी, वल्काज़िमीनल ग़ैज़ा, और कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं अपने गुस्से को, वल आफ़ीना अनिन्नास, और माफ़ कर देते हैं इंसानों को. सो दिस शुड बी द प्रैक्टिस. ईमान वालों की प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, माफ़ कीजिए इंसानों को, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए. वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मोहब्बत करते हैं एहसान करने वालों के साथ. So, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'a, the ayat that we've read, 23 ki 96. So you repel evil with what is good. If it is your time that you can give back, so you will not give back in the negative way. You will not give back to those who behave negatively towards you in the same way. तो इस तरह तो आप वही साइकिल वापस
कर देंगे. There is no difference between you and them. So if you are in a position of authority, in the sense that you are in a position of giving back and contributing and sharing, some or being empathizing with them or being compassionate, being kind. So it should be done that way, not in the same way that you had received. जी. So अब आप 3 की 140 देखिए. Sorry, 3 की 136 भी देख लीजिए, because that's also relevant. उलाइका जज़ाउहुम 136 I'm reading. ये वो लोग हैं जिनकी जज़ा है मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम. उनकी जज़ा है forgiveness from their Lord. So you're not expecting anything from anyone in return, because your forgiveness is from your Lord. It's not going to be coming directly from the people whom you're being kind towards. वजन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारू. और उनके लिए जन्नतें हैं स्टेट ऑफ पीस, जारी हैं जिनके नीचे से नहरें. तहतिहल अनहारू खालिदीना फीहा, और वो इसमें रहेंगे हमेशा. So you're actually again working for yourself, because if you gain forgiveness from Allah Ta'ala, then you are obviously going to be elevated to better state of mental peace and spirituality, and then you stay there, because Allah Ta'ala has promised us. वनेमा अजरुल, ये है बहुत बड़ी blessing है, बहुत अच्छा reward है for the doers, for those who actually act on this. अब 3 की 140 देखिए. ई यमसस्कुम करहुन, और अगर तुम्हें टच किया है कोई ज़ख़म, फ़कत मसल कौमा करहुम मिसलुहु, तो बेशक इसी तरह टच किया है लोगों को भी, दूसरों को भी इसी तरह की मिसाल, ज़ख़म या some hurt, some wound. So वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और इस तरह ये अय्याम हैं, these are such days or periods that we repeat amongst men, amongst humans. वलियालमल्लाहु, ताकि इल्म हो जाए अल्लाह को, अल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों के बारे में, वयत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, और वो ले तुम में से विटनेसेस. वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह पसंद नहीं करते उन लोगों को जो जुल्म करते हैं, और those who do wrong. So the similar wound had touched others as well. और अगर आप अपने पास्ट लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करें, तो आपको भी इसी तरह की डिफ़िकल्ट टाइम्स, अगर आप अभी अच्छी स्टेट में हैं, तो इट मीन्स दैट यू हैव बिन थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, you've been through the struggles, and you have been through the feelings of fear and anxiety and worries. So agar aap is waqt you are not going through them, so remember those times, because ये periods हैं जो अल्लाह ताला इंसानों पे बदल बदल के लाते हैं, ताकि अल्लाह उसमें से witnesses ले लें. So since we are witnesses of those times, again the responsibility lies on us to give back in the right way, because अगर आप नहीं करते हैं तो ये टाइम तो दोबारा आपके ऊपर भी आ सकता है. ठीक है जी, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है. आपने कोई हमेशा के लिए, तो you haven't got a ticket to Jannat. This is repeated, in a certain area you may have attained peace, but there are lots of areas which you may not be aware of, जहाँ पे आपकी नफ्स अभी प्रोपोर्शन में नहीं आई है, एंड आपको आगे इम्तिहान से गुजरना होगा, जो कि है, जो आयतें हैं. सो वो आयतें मीन दैट दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग. सो आपके सारे इम्तिहान तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते. तो अगले इम्तिहान के लिए आपकी तैयारी भी यही होगी कि इस वक्त अगर आपकी पोजीशन देने वाली बनती है, तो आप दीजिए इंसानों को काइंडनेस, कंपैशन और एम्पैथी के साथ. कंटिन्यूइंग विद 141, वली युमहिसल्लाहुल लज़ीना आमनु,
ताकि अल्लाह इम्तिहान ले लें ईमान वालों का, रिफाइन कर दें उनको, वयम हकल काफिरीन, और डिप्राइव कर दें उन लोगों को जो कि रिजेक्ट करते हैं. So within us the process of refinement takes place as well, and as much of us will follow in the ayat, in the following of the ayat, that much of us will be going towards a peaceful state. और जितना हम कर सकेंगे और जितना हम नहीं कर सकेंगे तो वो भी, that's also part of us. हर मामले में हम 100% नहीं कर सकते हैं. So that is also to be understood. जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के मुताबिक आपने ये अपनी जो है ना एटीट्यूड कोशिश करनी है यही रहे, और जितना कंट्रोल आप कर सकते हैं उस कंट्रोल के साथ आप जितना मैक्सिमम हो सके आपसे. So that part of you will move on. अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम हिसाब लगाते हो कि यालमिल्लाहुल लज़ीना जाहदू मिनकुम, और नहीं इल्म होगा अल्लाह को उन लोगों के बारे में जो जहाद करते हैं, स्ट्राइव करते हैं तुम में से, व यालमस साबिरीन, और अल्लाह को इल्म नहीं होगा सब्र करने वालों के बारे में. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्ट्राइविंग, सेल्फ कंट्रोल फॉर अस ऑल्सो, एंड दैट इज़ हाउ वी विल बी अटेनिंग हायर लेवल्स ऑफ पीस. अच्छा अमीना, ये सवाल किया गया है कि तुम्हें इल्म नहीं होगा या बताया जा रहा है यहाँ पर? ये है ना, ये जो इल्म नहीं होगा कि कौन स्ट्राइव कर रहा है, तो ये इसको हम कैसे लेंगे? बताया जा रहा है. नहीं बताया जा रहा है जी कि बताया जा रहा हाँ, है. आप ठीक. are you thinking that you're just going to move on to a higher level of spirituality and peace without having passed through the test and without having gone through the struggle? Because देखिए it's a process, तो वो struggle करनी ज़रूरी होती है. आप जब अल्लाह ताला से जन्नत की दुआ मांगते हैं तो वो ऊपर से नाजिल नहीं हो जाती. The peace does not just come to us. We have to strive for it. We have to, because the purpose of striving is to overcome our negativity. So only when we can, so the purpose is not to break us. It's to actually help us go through the grind to be able to to bear with it and to continue in the guidance received, and inshallah then we arrive at a point where we have overcome our issues, our negativities. तो जब वो प्रोसेस ऑफ किताल है जी, प्रोसेस ऑफ फाइटिंग है, एंड प्रोसेस ऑफ स्ट्रगलिंग है, एंड अ टाइम कम्स एंड अ टाइम कम्स कि हम अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल और चेक में ले आते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो वो जब आ जाते हैं तो उसकी जो है ना, उसकी वजह से देन वी अटेन पीस. सो दैट्स द प्रोसेस. So it can't be like a miraculous thing all of a sudden, like a switch being turned on. It is a whole dynamic. There are dynamics behind it. So उस dynamics का process, और ये तो दुनिया में आप हर चीज़ में देखते हैं. आप अल्लाह से दुआएं मांग के आप कहें जी कल को मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, मेरा इम्तिहान है कल, तो आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो खाली अल्लाह से दुआएं मांग के तो आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा. इट्स वेरी एविडेंट जी. बिल्कुल. सो आप दुआ तब मांगते हैं जब 6 महीने होते हैं या साल होता है एग्ज़ाम से पहले, आप दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ मुझे आप सुरखरू करें, कामयाब करें. तो अल्लाह ताला then helps you through the path. And you stay connected and keep receiving guidance and keep acting on the guidance. तो eventually जब 6-8 महीने के बाद आपका इम्तिहान होता है तो वो सारी preparation होती है, plus your faith in Allah and plus Allah's रहम on you, that he gives you the result and you move on. तो आप अगर बैठे रहेंगे और आप सिर्फ ज़ुबान से ही कहते रहेंगे और मेंटली इमेजिन करते रहेंगे कि आप ऐसे जगह पे मेंटली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. दैट्स ट्रू. थैंक यू सो मच. हर चीज़ का जो है वो आपकी रियल लाइफ में डायनामिक्स का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है.
spiritual advancement जो है is directly linked with how you behave in your daily life. आपका ईमान सिर्फ सोच के और कुरान पढ़ के नहीं होता आगे सही बात, बढ़ता। जी, बिल्कुल। नॉलेज बढ़ सकती है, उलुल इल्म आप बन सकते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उलुल इल्म और अल्लाज़ीना आमनू फर्क लोग हैं, ईमान वालों फर्क। जी वो फर्क बताया है। जी, उलुल इल्म आर दोज हु हैव द नॉलेज, बट राइट, they may have that kind of level of faith or they may not. बट अल्लाज़ीना आमनू जो हैं वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं, तो वो उसके आगे जो आयत होती है उस पर वो अमल करते हैं। और वो लोग जो उलुल किताब भी हैं, जो कि पीपल ऑफ द बुक विच आर मेंशन्ड इन द बुक, एंड ऊतुल किताब भी हैं जिनको अता की गई है किताब। तो उनके पास किताब तो होती है, लेकिन फॉलोइंग कितनी है, किताब की नॉलेज कितनी है और उसमें ईमान कितना है, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर एक्शंस, your mindset. And it's not like a one short thing that you do, it's repeated, repetition of the same action again and again, which actually becomes part of a pattern. It becomes a pattern of behavior within you. right, जी, बिल्कुल जी। So ठीक है, जब थैंक यू सो मच। जी, when it becomes a pattern of behavior that you exhibit under different, and फिर अल्लाह ताला इम्तिहान भेजते हैं, tougher instances भेजते हैं आपके, ताकि, और आपको टेम्पटेशन होती है, शैतान एक्टिवेट हो जाता है, सारी चीज़ें आती हैं, बट आपका एक पैटर्न होता है, तो यू कंटिन्यू ऑन दैट पैटर्न, तो इंशाल्लाह देन यू आर एबल टू ओवरकम योर पर्सनल, अंदर की जो आपकी नेगेटिव इमोशंस हैं। तो वो सी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब आप नेगेटिविटी को रिपेल करते हैं विद पॉजिटिविटी एंड विद एन एसन बिहेवियर, तो आपका जो दुश्मन है वो आपका फ्रेंड बन जाता है। सो उसका मतलब ये होता है कि जो आपके अंदर का शैतान है ना जी, यू हैव बीन एबल टू ओवरकम दैट। तो जब आप अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम कर जाते हैं ना, तो फिर आपको अफेक्ट ही नहीं करता कि बाहर से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बाहर से भी इंशाल्लाह रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही आता है इन मोस्ट केसेस, या समटाइम्स इट टेक्स अ लिटिल टाइम, बट पीपल डू हैव पॉजिटिविटी देन डेवलप टुवर्ड्स यू। That's true. Thank you so much. Thank you. जी, यू वेलकम जी। क्वेश्चन है कि 134 में मोहसिन का वर्ड आया है, यानी जो गुस्सा दबाते हैं, लोगों को माफ करते हैं और खुदा की राह में खर्च करते हैं। जी जी जी। तो मोहसिन और मुत्तकी, इसमें कोई डिफरेंस है या ये सेम लोग हैं? जी, मतलब जब आप ऐसे लोग बन जाएं जो कि मुश्किल और आसानी में खर्च करें, और आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और इंसानों को माफ़ किया, तो आप मोहसिनीन में से बन जाते हैं ना फिर, बिकॉज़ आपने डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी अच्छाई की है। So your response towards people has been of goodness, of essence behavior. And Allah Ta'ala loves people who are doing essence behavior. नहीं, तो मोहसिन और मुत्तकी सेम है, एक ही मीनिंग नहीं, है दोनों? अच्छा सॉरी, नहीं जी, मुत्तकी जो है ना जी, इट्स अ ब्रॉडर टर्म। मुत्तकी मीन्स जो तकवा लेते हैं, गार्ड लेने वाले लोग, ठीक है जी, who take guard from Allah. So you pray to Allah of righteousness, and you are God conscious. So परहेजगारी कहते हैं मुत्तकी लोगों के लिए कि वो परहेजगार होते हैं, मीनिंग दे अवॉइड getting into situations where they're going to be obviously facing things which they will have to control, or they develop guards and self restraint against those things which are not right. मोहसिनीन वो हैं जो कि अच्छाई करते हैं। So this is the difference. So yes, guard लेने वाले लोग भी अच्छाई करते हैं, of course, eventually. But muttaqi is specifically in the sense of having self-restraint and developing guards through the feeling of realizing that Allah is watching us and He's present everywhere.
तो जब आप खुदा खौफी को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं ना हर काम करते वक्त कि अल्लाह इज़ वॉचिंग अस, वी बेटर बी डूइंग इट द राइट वे, तो वो आपका एक माइंडसेट होता है ऑफ बिकमिंग मुत्तकी। ठीक है जी, ऑलराइट। एक आयत बिकॉज इसके करीब ही आ रही है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट because we are hearing about suicides also, in the news, and because of lockdowns and situations whereby people are, again, the same thing, fears, worries and anxiety is quite widespread. So uski wajah se people get into states of depression and panic attacks, and because of that, people who've already been struggling, they tend to go, they can't put up with the pain and then they take their own lives. So ये आयत देख लीजिए 3 की 145, और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि वो काफिर हैं तो जनाजा नहीं होना चाहिए, या नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उनके लिए दुआ नहीं मांगे, या कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सुनने में आती हैं। सो 145 देखिए, वमा काना लिनफ्सिन, और नहीं है किसी नफ्स के लिए, अन तमूता, कि उसे मौत आए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय अल्लाह की इजाज़त के, किताबम मुअज्जला, जो कि लिखी गई है फॉर अ टर्म, एट अ टर्म, वमन युरिद सवाब दुनिया, और जो जिसका इरादा हो दुनिया के सवाब का, नुतिही मिन्हा, तो हम अता कर देते हैं उसे इसमें से, वमन युरिद सवाब अल आखिराते, और जिसका इरादा सवाब का हो आखिरत के सवाब का, आखिरत में रिवॉर्ड, नुतिही मिन्हा, तो हम उसे अता कर देते हैं उसमें से, वसनज्ज़ि शाकिरीन, और जल्द हम रिवॉर्ड देंगे शुक्र करने वालों को। सो दिस आयत क्लियरली सेज दैट किसी नफ्स को मौत नहीं आ सकती सिवाय अल्लाह की इजाज़त के, and a person who would be taking his or her own life is actually in a state of very serious disturbance, and in state of, not in a state of well-being. So जब आप आपकी mental हालत इतनी ख़राब है and you are actually ill, so you actually, this is where हमारा रोल आता है to actually reach out, and what we are talking about is compassion and kindness, at least build that kind of relationship with people who can, so that they can at least call you up or talk to you, and maybe avoid such thoughts coming to them, or if they feel comfortable enough sharing with you that I'm so depressed and I'm so down, तो आप उनके साथ बात करके, काउंसल करके, उनको होप दिला के, उनका वो पीरियड ऑफ डिप्रेशन या पीरियड ऑफ होपलेसनेस को थोड़ा सा गुजार सकते हैं, शायद उनके हालात थोड़े से इंशाल्लाह इम्प्रूव कर जाएं, एटलीस्ट एट दैट टाइम यू हैव हेल्प देम आउट. So a person who does not feel that kind of connection with anyone, so as a society, as a people, it's our responsibility कि हमारे circle में we should see who is really struggling. So अगर आप इस तरह से किसी को identify करें, तो थोड़ा सा उनके साथ time spend करें और उनके साथ उनको hope दिलाएं, अल्लाह की आयतें बताएं, so that कुरान की तरफ थोड़ा सा लेकर आए, कुछ दुआएं बता दीजिए ताकि they have at least something to hold on to in their moments where they are not able to really think of anything but take their own lives. And उसके बाद खुदा न खास्ता इस किस्म की कोई चीज़ हो जाती है तो we are no one to say anything or judge anyone कि उन्होंने इस स्टेट में अपनी ज़िंदगी ले ली या किस तरह से. No person would actually want to end their life. It's only because they can't manage the pain, the suffering that they are going through, so they just want to end it. So that is the actual mental illness. So उसको आप उस तरह से लें. अब कोई इंसान अगर बीमार होता है तो उसको हम recognize नहीं कर पाते हैं because we don't have enough understanding that they are suffering, and they have gone to that extent that they can't handle it anymore. तो बात बड़ी आसानी से की जा सकती है later on, लेकिन उससे पहले
to avoid a situation like this, again, we have to be a little vigilant about our near and dear ones. जी, आप देखिए स्त्री की 147, जब आप लोगों के पास जाते हैं या कुछ इस तरह से, whenever and in your own actions also, anytime you feel that you are exceeding, you did, you know, overstepped and you went beyond your limits. So this dua is very important. We'll see quite a few duas to help us in guide. Allah Ta'ala will guide us in, you know, whatever we are learning. Allah Ta'ala will guide us and help us in that. Wama Sorry, kana. Amna. जी. Sorry, Amna. Which ayat you said? 3 की? जी, 147 आंटी. Okay, thank you. जी जी. वमा काना कौलहुम, और जो उन्होंने कहा और नहीं उन्होंने कहा सिवाय इसके, इल्ला अन कालू, कि उन्होंने कहा रब्बना फिर लाना, ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाहों से, व इसराफ़ना फ़ी अमरना, और जो इसराफ़ हमने किया, जो ज़्यादती हमने की हमारे कामों में, व सब्बित अक़दामना, और फर्म कर दें हमारी फुटिंग, हमारे कदम स्ट्रॉन्ग होल्ड कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कर दीजिए, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी हेल्प कर दीजिए उन लोगों के अगेंस्ट जो रिजेक्ट करते हैं. सो मीनिंग आवर ओन रिजेक्टिंग साइकी के अगेंस्ट हमारी हेल्प कर दीजिए, हमें स्ट्रॉन्ग फुटिंग दे दीजिए, हम मजबूत रहें अपने स्टांस में, और अगर हम कोई, if we exceed, go beyond in our limits, you know, when we realize that okay, we overdid this, we should not have overstepped. So Allah Ta'ala हमें माफ़ कर दे, और हमें that's the only way we identify, okay, we have to stay within our limits and not go beyond that. Even when it comes to helping people, हम उनको जितनी अपनी एक लिमिट में रह के इंसान हेल्प करता है, उस वहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, अगेन यू डोंट हैव टू इम्पोज योर आइडिया एंड इम्पोज योर माइंडसेट ऑन एनीवन. जितना अगला बंदा अलाउ करे आपको, उतने ही आप उनको एडवाइस और कंपनी और गाइडेंस दे सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, जस्ट बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी. सो अगर कोई अपना दरवाज़ा उस तरफ से नहीं खोलता है, सो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करें किसी के साथ, और सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए. ठीक है जी. एंड 3 की 193 भी देख लीजिए. दैट्स ऑल्सो अ दुआ. 3 की 193, रब्बना इन्नना समयना, ए हमारे रब बेशक हमने सुन लिया, मुनादी यही युनादी, निदा जो निदा दी, कॉल देने वाले ने, लिल ईमान, ईमान की तरफ, अन आमिनु बिरब्बिकुम, कि तुम ईमान लाओ अपने रब की तरफ, अपने रब के पास, फ़आमन्ना, फिर हम ईमान ले आए और हमने कहा, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए हमारे गुनाहों में, वकफ़िर अन्ना सय्यआतना, और रिजेक्ट कर दें हमसे, ब्लॉट आउट कर दें हमसे हमारी बुराइयाँ, व तवफ़ना माल अबरार, और हमें कंप्लीट कर दें, हमें वफ़ात दे दें, पूरा कर दें हमें, अमंगस्ट दोज़ हु आर द राइचस, नेकी करने वालों के साथ. ठीक है जी. सो दिस इज़ अनदर दुआ, ताकि जो हमारे अंदर खामी और कमी अभी रह गई है, विच वी हैव नॉट बीन एबल टू ओवरकम, सो अल्लाह ताला हमसे वो हटा दीजिए. ओके, इसमें आप एक और देख लीजिए, wanted to, हाँ जी, 21 की 83 is another dua which you can suggest to people, because a lot of times people are looking for something to read. So अगर आप अल्लाह की आयतों में से कोई, इसी कोरोना की भी कोई दुआ निकली हुई है, इसी जैसे जैसे निकलती हैं वो, whatever they intend, they translate it into Arabic and it sort of becomes a dua. बट अल्लाह ताला ने सारी दुआएं कुरान में जो बताई हुई हैं, सो इट्स बेस्ट अगर आपको कोई भी इंसान इन नीड मिले तो आप उनके साथ जस्ट शेयर इट, सो दैट एटलीस्ट दे कैन रीड इट. एंड देन ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की आप कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्ट करते हैं, तो दे विल, अल्लाह ताला विल सेंड देम, यू नो, विल हैव मर्सी ऑन देम एंड ब्लेसिंग. अदरवाइज ऑल्सो इट्स जस्ट, you know, a means. Allah Ta'ala is listening to everyone anyways. लेकिन जब आप इनको कुरान की तरफ लेकर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट ही उनके अपने ऊपर, एंड इट हेल्प्स देम डेवलप देयर फेथ मोर.
just like it did for us. So 21 की 83, व अय्यूबा इज नादा, और अयूब जब उन्होंने निदा दी, so अयूब, Hazrat Ayub is, the word Ayub is, Awab is used in Quran as the one who turns back, so who repents, तौबा जो करते हैं. So जब आपको realize होता है, जब आप तकलीफ में होते हैं, तो हम सब अल्लाह की तरफ ही turn करते हैं to ask for some relief and some forgiveness. उन्होंने अपने रब्बाहू, अपने रब को निदा दी, कॉल किया. अन्नी मस्सानी यद्दुर्रो, indeed I am touched by distress, so distress has affected me. wa anta arhamur rahimi, और बेशक आप रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं. So जब आप तकलीफ़ में होते हैं, immense pain में होते हैं, तो इस किस्म की दुआ जब आप, इस किस्म के अल्फाज जब आप पढ़ते हैं, so it brings instant hope and relief to you. So ये चीज़ें हमें करनी है कि थोड़ा आप WhatsApp मैसेज ही भेज दीजिए किसी को, if you feel that they will at any time read it. So if they're not in a mood to listen or talk, and everybody is looking for these things these days. 21 की 87 देखिए. आजकल आयत करीमा का भी बहुत हो रहा है. It's actually on the same page जी. So but the understanding is very important कि इसका मतलब क्या है. So yes, we do read this ayat. So 21 की 87 की last 2 lines हैं. So अगर आप पूरी आयत देख लीजिए तो we'll understand the context also. वज़न्नूने इज़ ज़हबा मुगादिबन, और याद करें ज़न्नून को कि जब वो निकले थे, when he departed, ग़ज़ब में, ग़ज़ब इज़ द रात, जब अब मुश्किल में निकले. फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिरा अलैहि, तो उन्होंने गुमान किया कि किसी को उनके ऊपर कोई कुदरत नहीं है, that Allah does not have power over him. So ये नबी की बात हो रही है. तो हज़रत यूनुस came into that kind of guman, assumption or misunderstanding as well. So we relate to that very easily. So Allah Ta'ala ने नबियों को भी ऐसे ही बनाया है कि हम उनसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिसले बशर हैं अल्लाह की स्पिरिट. So we can take that, we can relate to it very easily, that a lot of times we think everything is under control and Allah has no power over us, which we get into that state of mind, which is of course the wrong state. फनादा फि ज़ुलुमाते, और फिर उन्होंने कॉल किया जब वो जुल्मत में आए. So when we also, because of our wrong mindset and thinking that we have everything, we have power over everything and everything is set for us, so उस वक़्त अल्लाह ताला फिर आपको टेस्ट करते हैं. He takes you to the darkness when you see no light. तो जब आप जुल्मत में आ जाते हैं तो तभी आपको रियलाइजेशन होती है, एंड दैट्स व्हेन यू से अल्लाह इलाहा इल्ला, कि नहीं है कोई गॉड सिवाय इल्ला अंता, सिवाय आपके, सुबहानका, आप सुबहान हैं, ग्लोरी टू यू, इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन, इंडीड आई एम द वन ऑफ द रॉन्ग डूअर्स, सो आई एम द वन हु हैज़ डन रॉन्ग. So this is taking responsibility of your own actions. So ये दुआ जब आप करते हैं तो इसका, it's a very potent दुआ, yes, but इसका मकसद ये होता है कि आप understand करें कि I am not in any sort of power or authority. I am nothing. So सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है, बिकॉज जब आप समझते हैं कि आपके ऊपर कोई पावर नहीं है तो आप अपने आप को ही गॉड बना रहे होते हैं बेसिकली. व्हेन यू थिंक कि आप भूल जाते हैं जब कि अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह है. सो अल्लाह हैज़ पावर इन योर हाईएस्ट मोमेंट्स ऑल्सो. अल्लाह इज़ द वन हु इज़ द मोस्ट पावरफुल. सो आपको हम्बल रहना भूल जाता है, या आपको अल्लाह की जो है ना प्रेजेंस किसी वक्त भूल जाती है, खुदा खौफी, तो उस वक़्त आप अपने आप को बहुत समझने लग जाते हैं इन अथॉरिटी एंड इन सिचुएशन. सो दैट इज़ व्हेन यू आर टेस्टेड लाइक दिस. सो अगर कोई पढ़ना चाह रहे हैं ये दुआ, देन दे शुड अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट दिस मीन्स that you accept that you are at fault,
So सबसे पहले, it is not to be just read like that as a ritual, it is to be understood, because you're accepting that I am at wrong. So I take responsibility of doing the wrong deeds, and hence I am now facing the darkness, that I'm lost and I don't know the path, I don't know where to move forward. So ये आपकी सिचुएशन जब आती है तो आप अल्लाह ताला से, ऑफ कोर्स यू टर्न अगेन टू अल्लाह ताला, यू सीक फॉरगिवनेस and you accept your fault. And when you take ownership like this, that is when Allah Ta'ala shows you the way forward and the light. And that's when you move on. तो इस तरह की situations, दुआएं पढ़ने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें कि आपने कहाँ गलती की है, which has landed you in this kind of situation. So and that's a positive mindset. It's not to say कि आप गलती ही ना करें, आप करेंगे, आप ज़रूर गलती करेंगे, you will land up in darkness. But जब भी आप इस तरह से stuck up situation में आए कि you don't know where to head and you are miserable and you realize, okay, I've done something wrong, seriously. So this is the dua that you read and from your heart, and then you seek forgiveness from Allah Ta'ala, and you accept again that yes, of course I forgot this, that Allah is the only one who's in authority and power. It is a state of self realization, और बिल्कुल जी, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद फिर तौबा करने की बात भी यहाँ पे आ गई। ऑब्वियसली फिर तौबा कर ली तो फिर एहसास हुआ कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, और बिल्कुल अल्लाह को ही सुप्रीम मानना है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सारा माइंडसेट जो है ना, आपका एक अप्रोच आपकी डेवलप हो जाती है, because that is when you come into the frame of mind of actually looking at yourself कि I am the one who's doing wrong, instead of blaming others कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ. If I am now in darkness, I am the one to blame. So I take responsibility of things that are happening to me to the best of whatever I can manage. जी. So any situation that occurs or happens, you're in a problem, you have to analyze, is it always your fault or any fault, or the decisions we made, right? जी जी बिल्कुल। So how is that, if we realize this and read this and submit to Allah, and realize that we are in darkness, and only then Allah relieves your burden, right? बिल्कुल आंटी, द रियलाइजेशन, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, it's taking the ownership to an extent where it has been our duty. So हर चीज़ तो हमारी उसमें नहीं होती डोमेन ऑफ ऑपरेशन में. So it's not that everything that happens it's totally our responsibility. So जहाँ तक हम हमारी ड्यूटी थी टू एक्ट इन अ सर्टन वे, वो अगर हम नहीं कर पाते तो वी लैंड अप इनटू द डार्क साइड. सो वहाँ पे हमें रियलाइज़ करना है कि ओके, और वी मेड अ रॉन्ग डिसीजन और वी टुक अ रॉन्ग टर्न. वहाँ पे हमें फिर रियलाइज़ करना है कि ओके, हमने गलती कर ली. एंड देखिए, इट्स टू बी टेकन पॉजिटिवली. मकसद ये नहीं होता कि आप you feel depressed or sort of down and all that. मकसद ये होता है कि आपको एहसास हो जाए कि ये गलती आप कर रहे हैं, सो इस गलती को आपने फिक्स करना है. सो बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट भी कर देते हैं जिनका अभी टाइम नहीं आया होता, एंड इट्स योर ब्लाइंड साइड, यू नॉट अवेयर ऑफ इट. सो हर जगह से अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखते हैं. लेकिन जहाँ आपका टाइम आ जाता है दैट यू आर सपोज टू लर्न अ लेसन, so that is when you must bring your attention to yourself. Okay, what am I doing wrong in this? Where am I going wrong in this? Rather than very naturally हमें बड़ा it's very easy for us to just put the entire responsibility on the other person. ओके, अगले इंसान ने या अगले जो भी फैमिली मेम्बर्स या जो भी लोग थे उन्होंने तो किया जो किया, आपने क्या किया इसमें? आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर सिचुएशन में. सो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है उस सिचुएशन में, उतनी तो आप ठीक कीजिए. उसके बारे में यू सीक गाइडेंस. ओके, व्हाट वाज द राइट वे दैट आई वाज सपोज टू गो,
and I could have done it differently. So inshallah, next time I will try to mend my ways, or the way I approach things, or the way I think about things, and do it differently and in the right way possible. ठीक है जी? Just a reminder, ये 21 की 83 आप बताई थी ना, ये stressful time की, और 87 बताई थी आपने ना जी 83 भी आंटी की हमने दुआ के 83 भी की और 87 भी की है और 87 भी की है. 87 भी ठीक की है, है जैसे रिमाइंडर 21 की 87 जी. अच्छा जी, एक और I'm not sure how much time we have. I wanted to actually do one more ayat. 24 की 22 देख लीजिए. बिकॉज ये सब चीज़ें करने से पहले आपका दिल साफ होना बहुत ज़रूरी होता है लोगों की तरफ से. If you keep on, if you hold on to any grudges from the past experiences that you've had with those people, or you hold on to negativity, any feelings, ill feelings, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. You can't मतलब इस सेंस में जो है ना, you have to overcome those feelings, and you have to ignore and forgive. 22 surah 24 ayat 22 wala ya'tali ulul fadli minkum, और नहीं जो लोग फजल वाले लोग हैं, मीनिंग जिनको अल्लाह ने अपनी फजल से नवाजा है, जो तुम में से हैं, they should not resolve, they should not decide बस साते अन युतु उलिल कुर्बा, कि वो अपनी जिनके पास वुसअत है, जिनके पास एम्पलीट्यूड ऑफ मीन्स हैं, they should not resolve by oath against helping ulil kurba, करीब के लोग, wal masakina, and those who are needy, wal muhajirina fi sabilillah, and those who are migrating in Allah's way. So आप किसी को ये मत कह दीजिए, राइट ऑफ ना कर दीजिए किसी लोगों को. इफ यू आर इन अ पोजिशन टू हेल्प आउट, डू नॉट राइट ऑफ एनीवन. वल याफू वल यस्फाहू, और उनको माफ़ कर दीजिए और उनसे मुसाफिहा कीजिए. मुसाफिहा करने का मतलब ये है कि शेक हैंड्स और बेफ्रेंड देम, ओवरलुक देयर फॉल्ट्स. अला तुहिब्बूना, क्या आप पसंद नहीं करेंगे, अन यग़फ़िरल्लाहु, कि अल्लाह मग़फ़िरत करें आपकी, लकुम, आपके लिए मग़फ़िरत करें, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं. सो आपको अपने people whom you know and you feel that you have any dislike or any feelings of any ill feelings towards them, and if they are in need, and if you are in a position to help, so you have to overcome that and ignore that, because again ये आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जो अच्छाई आप कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ही आपको उसका अजर देंगे. Won't you like that Allah will forgive you also? Time and again we are doing the same. हम भी अल्लाह ताला की नाफरमानी बार बार कर रहे होते हैं, पर बार बार अल्लाह ताला भी हमें माफ़ कर देते हैं और फिर हमें अपनी रहमत से नवाजते हैं. So इसी तरह we have to also behave in the similar manner. So I think I've done most of the ayat. एक 26 की 80 देख लीजिए. That's also very important. Again, if you want to pass on any ayat to anyone, Surah 26. It actually starts from the whole event of Hazrat Ibrahim starts from 69, which is very important to understand. लेकिन इसमें जो आयत नंबर 80 है, for those who are unwell, उनके लिए, वईज़ा मरितो फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं मरीज़ हूँ, जब मुझे मर्ज़ आ ले, तो वही मुझे शिफा देता है. So it's only Allah Ta'ala who can cure those who are ill. So it can be physical illness, so it builds up hope in our minds that whenever I'm ill, Allah will protect me, Allah will give me shifa.
ठीक है जी, ही इज़ द वन हु क्रिएट्स अस, ही इज़ द वन हु गाइड्स अस. सो अगर आप पिछली आयतें भी देखें, सो अगर आप नंबर 78 देखिए, अल्लाजी खलाकनी फहुवा याती, वही है जिसने मुझे क्रिएट किया और फिर मुझे गाइडेंस दी. वल्लाजी हुआ युद इमुनी व यस्कीन, वही है ज़ात अल्लाह की जिसने मुझे खाना दिया और मुझे पानी पिलाया. व ईज़ा मरितो फहुवा यशफीन, और जब मैं मरीज़ होता हूँ, मुझे कोई मर्ज़ आ ले, तो फहुवा यशफीन, वही मुझे शफा देता है. वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वही वो ज़ात है जो मुझे मौत देगी और फिर मुझे ज़िंदा करेगी. सो वल्लज़ी अत्माउ अन यग़फ़िर ली, और वही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे मेरी मग़फ़िरत कर दे ख़तीआती, मेरी ख़ताओं से, यौमद्दीन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट. रब्बे हबली हुक्मा व अलहिकनी बिस्वालिहीन, ए मेरे रब मुझे अता कर दीजिए हिकमत, विजडम, व अलहिकनी, और मुझे ज्वाइन कर दीजिए बिस्वालिहीन, with those who are making corrections, इस्लाह करने वालों के साथ. ठीक है जी. So ये these are very these are ayat, all ayat are very effective and very potent and very strong, but person who is struggling and suffering, उनके लिए ये आयतें बहुत इत्मीनान और सुकून का बायस बनती हैं. So इनको आप किसी के साथ शेयर करना चाहें, so वो it will give them a lot of relief. So regarding today's Amna, lectures, if anyone wants to ask me. Amna, excuse me. These ayats are for you for the person who's reading is to come to an understanding. It's not for the person to be reading these ayats as a dua. It is in his mind that he understands that it is Allah who is going to help me. Is it? I mean, how do you share it with somebody else? How do you share it with somebody else? I mean, do you just tell them that this is how Allah will help you? Or you're supposed to tell them to pray, or you're supposed to tell them to pray this ayat? देखिए, अगर तो वो नमाज, देखिए जी, आई अंडरस्टैंड. पहले तो अगर वो ये आयतें पढ़ भी लेना जी और समझ भी लेना, तो उनको बहुत सुकून मिलेगा. जिस तरह अगर हम अभी पढ़ रहे हैं कि आपको जब भी अल्लाह ताला के होने का एहसास हो जाता है ना अपने पास, you just feel the connection, you feel relaxed. It is in itself a feeling of peace कि जब आप अपने रब को पुकारने लगते हैं और जब आप उन लफ्ज़ों से पुकारने लगते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, with an understanding कि आपने ही तो मुझे क्रिएट किया है और आपने ही मुझे गाइडेंस दी है, मेरा खाना भी आप पहुंचाते हैं, मेरा पीना भी आप प्रोवाइड करते हैं. सो इसकी जब आप when for the person who is आप अगर उसका सोचें कि जो किसी डिस्ट्रेस में है, किसी तकलीफ में है, तो उसके लिए ये कितनी it's like these are words that you communicating with Allah Ta'ala. So you are saying all that you want to say. Those words are given to us by Allah कि इस तरह से जब आप पढ़ते हैं तो आप कलाम कर रहे हैं अल्लाह के साथ, और मैं मरीज़ हूँ तो आप मेरी शिफा भी आप ही करेंगे. So and you will cause me to die and live. And उसके बाद ये एंड में है जी दुआ, जो रब्बे हबली है जी, that's a दुआ. So that eventually comes to to an ending कि मुझे आप righteous बना दीजिए, मुझे आप join कर दीजिए, wisdom मुझ पे wisdom डाल दीजिए. So ये दुआएं आप ये पूरी आयतें जब आप शेयर करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि जी आप ये पढ़ लीजिए. रिचुअलिस्टिक तरीके से तो हमने किसी को नहीं कहना होता कि जी आप इसको 10 दफ़ा पढ़ें या 15 दफ़ा पढ़ें, या यूँ पढ़ेंगे तो ये अफेक्ट होगा, वो उस तरह पढ़ेंगे तो वो अफेक्ट होगा. पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है. उनको बस कहिए कि ये आयतें हैं कुरान की और अल्लाह ताला दे विल गिव यू पीस एंड दे विल गिव यू होप. सिंपल एज दैट. Because as we are reading it, it just strengthens our faith. And we feel that, okay, we belong to Allah, so it's all right, whatever is happening to us. So instantly you feel the pressure being, released.
बिकॉज अल्लाह के साथ आप इस तरह की जब भी आयतें पढ़ते हैं तो उसका असर ही ये होता है कि आप एक हायर अथॉरिटी के सामने अपने आप को सबमिट करता हुआ पाते हैं। सो आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आप बस यही कहेंगे कि जी हैव फेथ इन अल्लाह ताला, अल्लाह ताला सारे काम बनाने वाला है, एंड दीज आर द आयात, दीज विल गिव यू होप, एंड रीड देम विद द मीनिंग, रीड देम विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, और एंड में वो दुआ आ जाती है सारी। Going back that's to all. If anyone, sorry, Amina, going back to 26 की 80 कर रहे थे ना, सॉरी, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई बात ना, हाउ टू सॉर्ट ऑफ कन्वे पीपल, यू नो, कि कैसे पढ़नी। तो ये 26 की जो 80 है, तो उसमें ये था ना कि हम देखिए ना, क्लैमिटीज या उसके इफेक्ट्स जो होते हैं फिजिकली लोगों में, अल्लाह ना करे किसी पर भी आ सकते हैं ना। तो उसमें उस तरह से ये है कि हाँ, है ना, तो उसमें ये है कि अल्लाह भी एम्पैथाइज करता है पीपल हुआ जो रुजू करते हैं, जो स्ट्रेस में होते हैं। और वही चीज ह्यूमन एलिमेंट में भी होनी चाहिए कि जो कहीं किसी स्ट्रेस में है उससे एम्पैथाइज करे ना। कोई भी किसी पर किसी फॉर्म सिचुएशन में भी अल्लाह न करे आ सकता है, तो उसको हम एम्पैथी की जरूरत है एक दूसरे के साथ। ये ठीक है ना, ये भी इसके अंदर आ जाएगा जी, हम, बिल्कुल है आएगा ना। जी, तो बिल्कुल, कोई भी हाँ जी, किसी वक्त बिल्कुल, कोई भी किसी फॉर्म में आ जाए तो हमें यही सोचना चाहिए कि अल्लाह ना करे हम नहीं थे उसमें, हमें बचा के रखे, सबको बचा के रखे। और अल्लाह ना करे किसी फॉर्म में आ जाए तो हमें भी उसी तरह से एम्पैथाइज करना है, हम चाहें कि अल्लाह हम पर रहम करे। ठीक है ना? बिल्कुल जी, बात बिल्कुल बिल्कुल अपना भी आप माइंड में रखिए कि वी कुड हैव बीन इन द सेम सिचुएशन, एंड इफ वी आर नॉट, तो हमें खामोशी से अपने अपने घरों में चुप करके बैठने की जरूरत नहीं है। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि डोंट बी सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्टेड विद एवरीवन एल्स हु इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। डोंट सॉर्ट ऑफ कीप योरसेल्फ अलूफ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह का मैसेज आगे पहुंचाने का मतलब खाली ये नहीं है कि आप उनको गवर्निंग आयतें, मुहकम आयात बताएं किसी को। आपका मकसद ये भी होता है कि ये होपफुल आयात बताइए उनको एक जरिया समझाइए कि आप कैसे देखें। हमने सीखा है अल्लाह से कनेक्ट करना, इन आयतों से हमें बड़ी सुकून मिलता है। आप भी पढ़ेंगे, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। आप अल्लाह से उनको अल्लाह की तरफ लेके जाने का जो है ना, हम एक जरिया बन सकते हैं। सो that is what is intended, कि it's very easy to just be a silent spectator and keep yourself away and say कि हाँ okay fine. No, be a little more active in sharing whatever gives you peace, sharing Allah's message, sharing such ayat which is going to help them and help them connect with Allah Ta'ala, because आना वहीं से है उनके लिए। जो डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर हमने किस तरह सीखा, मुश्किल टाइम हमने कैसे गुजारा, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, वी सीक्ड असिस्टेंस विद सब्र, पेशेंस एंड सलात। तो जहाँ जहाँ उनको चाहिए उनको वो आयतें भेजिए या उनको दिखाइए कि इस तरह से आप करें। अगर जिस तरह से भी वो समझ सकते हैं, share some whatever you can share with them, give back. The point of spending now, अनफिकू की जो हमने आयतें देखी हैं, give back now. जी बिल्कुल। Depending on the situation, जी। So sharing is healing basically, healing for yourself and others also. जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम खामोश रह के साइड पे चुप करके नहीं बैठने की जरूरत हमें। That is not what is, this is also fighting in the way, this is also striving in the way, कि आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी कोई मिले किसी के साथ कनेक्ट करने की एंड किसी को तसल्ली देने की, ये भी आपके ऊपर इट्स है। और अगर कोई इस तरह का इंसान है जो कुरान पढ़ सकता है जिसको ज़्यादा, तो उनको वो आयतें बताइए। जो नहीं पढ़ सकता है, फॉर सम रीज़न यू अंडरस्टैंड दैट ओके इनको समझ नहीं आएगी, यू सी हर इंसान की सिचुएशन के मुताबिक बताइए कि किस तरह से दे कैन टर्न टू अल्लाह ताला। उनको आप छोटी आयतें बता दीजिए, उनसे कहें ये याद करके आप बेशक जिस तरह भी रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगी आपको, हाउ एवर यू फील।
हमने भी तो फर्क फर्क तरीकों से सीखा है, हर इंसान फर्क तरीके से सीखता है, और अगर खाली उनके साथ बैठ के आप उनको सुन भी लेते हैं तो वो भी आप समझेंगे इट इज आवर ड्यूटी टू डू दैट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है जी, चलिए ठीक है, थैंक आमना, यू जी। ये जी एक मेरा जी क्वेश्चन है, जी यहाँ